तो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? याद है किसी को? We discussed in depth about दान और importance of uh, कैसा दान होना चाहिए। ब्राह्मणों को जो हम करते हैं उसी को दान कहते हैं। Um, डिस्कस्ड के युधिष्ठिर महाराज ने कैसे अ, बहुत सारा दान किया yeah, how और he उनके was qualified to be the king. एंड used to give tens of thousands of brahmana used to come and he used to feed them. Even when he went to वनवास, तब भी वो अक्षय पात्र लेकर गए ताकि वो वहां पर भी उनको ब्राह्मणों की सेवा उन्होंने वनवास में भी नहीं छोड़ी. And that's why Krishna kept giving him so that he keeps giving it away to brahmanas, right? आज उसी की एक्सटेंशन है, हर थीम, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. सो विल स्टार्ट विद 1.12.6. किं ते कामाः सुरास्पृहाः मुकुन्दं मनसो द्विजा अधिजरुहुर्मुडं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे. Translation: O Brahmanas, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of the heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except Lord's service. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Yeah. There are two things in the world which can satisfy living beings. When one is materially engrossed, he is satisfied only by sense gratification. But then one is liberated from the conditions of the material modes, he is satisfied only by rendering loving service for the satisfaction of the Lord. This means that the living being is constitutionally a servitor and not one who is served. Being illusioned by the conditions of the external energy, one falsely thinks himself to be served, but actually he is not served. He is servant of the senses like lust, desire, anger, avarice, pride, madness, and intolerance. When one in his proper senses, when one is in his proper senses by attainment of spiritual knowledge, he realizes that he is not the master of the material world, but is only a servant of the senses. At the time, he begs for the service of the Lord and thus becomes happy without being illusioned by so called material happiness. Maharaja Yudhishthira was one of the liberated souls, and therefore for him there was no pleasure in a vast kingdom, good wife, obedient brothers, happy subjects, and prosperous world. These blessings automatically followed for a pure devotee, even though the devotee does not aspire for them. The example set herein exactly suitable. It is said that one who is hungry is never satisfied by anything other than food. The whole material world is full of hungry living beings. The hunger is not for good food, shelter, or sense gratification. The hunger is for spiritual atmosphere. Due to ignorance, only they think that the world is dissatisfied because there is no sufficient food, shelter, defense, and object of sense gratification. This is called illusion. When the living being is hungry for spiritual satisfaction, he is misrepresented by material hunger. But the foolish leaders cannot see that even the people who are most sumptuously materially satisfied are still hungry. And what is their hunger and poverty? This hunger is actually for spiritual food, spiritual shelter, spiritual defense, and spiritual sense gratification. These can be obtained in the association of Supreme Spirit, Lord Shri Krishna, and therefore one who has them cannot be attracted by the so called food, shelter, defense, and sense gratification of the material world, even if they are relished by the denizens of heavenly planets. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said by the Lord that even in the topmost planet of the universe, namely the Brahmalok, where the duration of life is multiplied by millions of years by earth calculation, one cannot satisfy his hunger. Such hunger can be satisfied only when the living being is situated in immortality, which is attained in the spiritual sky far, far above the Brahmalok. In the association of Lord Mukunda, the Lord who awards his devotees the transcendental pleasure of liberation. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Alright, so there are two things in the world which can satisfy the living being. दो चीजें हैं, या तो हम मटेरियली अपने आप को एनग्रॉस करके उससे सेटिस्फेक्शन ले लें, सेंस ग्रेटिफिकेशन करके, ठीक है, उसमें मजा आता है। दूसरा तरीका क्या है कि भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस करके ले लें, ठीक है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमें अपना मटेरियल चीजों में सेंस ग्रेटिफिकेशन करके मजा आता है, क्योंकि वो भी पता चल गया कि दैट इज टेम्परेरी, उसमें भी मजा नहीं आता, ठीक है। और दूसरा, भगवान में भी अभी उतना मन नहीं लगा है कि भगवान की सेवा करके मजा आ गया, ऐसा भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम जैसे जो लोग हैं ना, वो क्या हो गए, माया मिली ना राम, ऐसे वाले लोग हो गए हैं, ठीक है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि या तो फूल, शास्त्रों में लिखा है कि या तो फूल जो है वो फुली हैप्पी, बिकॉज उनको पता ही नहीं, अगर हम अपनी लाइफ बैक ट्रैक करें 5 साल पहले, तो हम भी ऐसे ही थे ना, अरे वाह चलो फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे वॉज, आई वॉज टेलिंग द अदर डे सर मंगला दैट, ओह मैन, नाउ दैट फ्राइडे वाली जो फीलिंग पहले आती थी वो अब आती नहीं है, क्योंकि पहले फ्राइडे होता था फुल सेंस इंजॉयमेंट करनी है। ठीक है, आज कौन सी नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवी आई है या कौन सी वो मूवी देखेंगे, ऐसे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे पिज्जा खाएंगे, ये करेंगे। बट अभी होता है कि नहीं, वी हैव टू गो टू भक्ति वृक्षा, राइट। बट वो वाली जो सेंस इंजॉयमेंट हम करते थे, उसका हमें लगता था कि वी वर फूल्स, अभी भी फूल हैं बट अभी थोड़े कम फूल्स हैं। उस टाइम पे लगता था कि अरे यार यही है बस, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद सैटरडे कैसा जाता था, फुल ऑफ फाइट। बिकॉज रात को लेट सो गए, फ्राइडे रात को सेंस ग्रेटिफिकेशन करके सो रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, सैटरडे का सारा दिन खराब, ठीक है ना। और कोई स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट भी नहीं है, कोई कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, ठीक है। बस ऐसे ही बैठना है और सैटरडे रात को फिर देखनी है मूवी, फिर से कुछ कुछ करना है, फिर से पार्टी करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि से अभी अगला दिन पड़ा है संडे का, और उसके बाद संडे रात को फिर से वापस डाउन। तो वो जो ये वाली सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो ये वाली सेटिस्फेक्शन है, जो मटेरियली एनग्रॉस्ड करके होती है, वो हमें लगता है, वो हमें लगता है कि वो बढ़िया है, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट। बिकॉज व्हाट इट इज सेड कि ही इज नॉट सर्विंग, ही इज द सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। वन फॉल्सली थिंक्स दैट हिमसेल्फ टू बी सर्व्ड, उसको लग रहा है कि मैं अपने आप को सर्व कर रहा हूँ, वेयर एज दैट्स नॉट द केस। हम, या तो हम अपनी सेंसेस को सर्व करेंगे या हम कृष्णा को सर्व करेंगे। हम खुद को तो सर्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज दैट्स नॉट इन अवर नेचर। वी आर द सर्विटर्स। द लिविंग बीइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली अ सर्विटर एंड नॉट द वन हु इज सर्व। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमने ये समझ लिया, अगर हमने ये समझ लिया, देन वी विल बी हैप्पी। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स जो हमारी हमारी स्वरूप, हमारा जो एक्चुअल जो हमारी पोजीशन है, दैट इज ऑफ ए सर्विटर एंड नॉट हु इज सर्व्ड। लगता है ना, कैसा लगता है, ये अजीब लगता है ना ये सुनने में, कि अरे मैं, मेरे को नौकर बोल दिया, सर्वेंट बोल दिया मुझे। बट दैट्स हु वी आर। और हमें सर्व करके हमें लगता है अभी, बिकॉज वी आर इन इल्यूजन, हमें लगता है कि हम मास्टर हैं और मुझे सर्व करो तो मुझे मजा आ रहा है, बट दैट्स नॉट अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन।
हम किसको सर्व कर रहे हैं? अपनी सेंसेस को, अपनी लस्ट को, अपनी डिजायर को, अपने एंगर को, इन्हीं को सर्व करे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये दिल मांगे मोह। और जितना हम मन को, मन मन जो है, वो सेंसेस के ऊपर क्या है? मन, मन के ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस। अब हमें मन को थप्पड़ मार के उसको कंट्रोल करना चाहिए। बोलते हैं वन डिजायर कॉन्कर्ड इज बेटर देन 1,000 डिजायर्स फुलफिल्ड। वन डिजायर कॉन्कर्ड इज बेटर देन 1,000 डिजायर्स फुलफिल्ड। तो अगर एक भी डिजायर हमने अपनी दिल, आज के दिन की, हमें हमें रोज उठकर ये अपने मन को बताना चाहिए कि आज जो मन तू कहेगा ना बेटा, मैं वो मानने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मन क्या है? कीप्स ऑन गिविंग यू ऑप्शंस, वन आफ्टर अनदर। अच्छा ये कर ले, ये नहीं ये कर ले, ये नहीं ये कर ले। सो मेनी ऑप्शंस इट इज गिविंग। एंड ये हमें कब रियलाइज होता है कि मन हमें ऑप्शंस दे रहा है? व्हेन वी आर चैंटिंग इन द मॉर्निंग, तब आती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिजायर्स। क्यों? उसके आगे पीछे क्यों नहीं आती? सारा दिन में क्यों नहीं आती? आती हैं, सारा दिन भी आती हैं। बट हम इतने ज्यादा कंडीशनड हैं, इतने ज्यादा इल्यूजन्ड हैं कि वो अनकॉन्शियसली आ रही हैं, और हम अनकॉन्शियसली उन पे एक्ट करे जा रहे हैं सारा दिन। और हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सिर्फ चैंटिंग करने के टाइम पे हम में से थोड़ी सी, अगर वो भी अगर अटेंटिव कर रहे हैं, अगर ऐसे घूमते फिरते कर रहे हैं, फिर तो वो भी नहीं है। अगर थोड़ी अटेंटिव चैंटिंग अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के कर रहे हैं, तब पता चलता है, ओ माय गॉड, लुक एट दिस मन, इट इज ब्लैबरिंग वन आफ्टर अनदर थॉट, वन आफ्टर अनदर थॉट। मैं भुरिजन प्रभु की बुक पढ़ रहा था, जपा के, अपना क्वालिटी ऑफ चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द स्टेप्स जो उन्होंने दिए हैं। एंड देन आई वाज रियलाइजिंग, ओ माय गॉड, दिस मन इज वेरी वेरी डेंजरस। क्या क्या ऑप्शंस देता रहता है। क्योंकि नाउ आई एम एबल टू लिसन द मन। नहीं तो हम मन को, तो जैसे मैंने बोला है, अनकॉन्शियसली जस्ट डूइंग, मुंह से बोल रहे हैं बस। मन तो उन्हीं चीजों में, उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है। बट व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट, देन यू विल एनालाइज कि कितना कुछ ये दे रहा है हमें मन। इल्यूजन, कितना हमें इल्यूजन में डाल रहा है। और हम जो जो वो बोल रहा है, हम वो करे जा रहे हैं। तो वी आर द सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि अब से मन जो भी बोलेगा, मैं उसको बोलूंगा कि बेटा, आज के दिन में तेरी, मन बहुत सारी चीजें बोलता है। मान लो 10 चीजें बोल रहा है मन, आप 10 की जगह आप बोलोगे कि बेटा आज मैं 9 करूंगा। आज मैं तेरी एक बात, तेरी मैं नहीं मानूंगा आज। हर रोज अपने आप को बोलो कि बेटा तेरी आज एक बात नहीं मानी जाएगी। नहीं तो हम क्या बने हुए हैं? गोदास। गोदास से वी हैव अ जर्नी टू गो टू गोस्वामी। तो एक बात मन को बोलो कि बेटा आज तेरी एक बात नहीं मानी जाएगी। और दैट ऑल ऑफ अस वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। डिसाइड करो कि मन को बोलो कि बेटा आज तेरी एक बात नहीं मानेंगे हम। वो हर एक की अपनी अपनी कोई कोई हो सकती है, बट मेक श्योर कि आप उसकी एक बात नहीं मानोगे आज। 9 मान जाओगे। अगर 10 ऑप्शंस दे रहा है, धीरे धीरे, देन यू विल कॉन्कर दैट डिजायर। तो वन डिजायर कॉन्कर्ड इज बेटर देन 1,000 डिजायर्स फुलफिल्ड, राइट? Otherwise what we will do is we will remain the servant of senses, nothing else, nothing else. हमें क्या होता है, हमें हमें होता है कि चैंटिंग फटाफट से खत्म करके, हम मन जो ऑप्शंस दे रहा है मुझे कि मैं, अच्छा अभी तेरे को ये भी करना है, अच्छा तेरे को पता है अभी तुझे ये भी करना है, तो मैं फटाफट से चैंटिंग राउंड्स अपने फिनिश करूँ 1.25 घंटे 1.5 घंटे में, और मैं वो काम करने लग जाऊं भाग। इस कॉन्शियसनेस में हम चैंटिंग करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट नाउ। व्हाट इज हैपनिंग इज, Maharaj Yudhishthir was one of the liberated souls. Therefore, for him there was no pleasure. नो प्लेजर, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। हमने पिछले वर्ष में देखा ना, इतना इतना धन था उनके पास, लेकिन देर वॉज नो प्लेजर इन वास्ट किंगडम, गुड वाइफ, ओबीडियंट ब्रदर, हैप्पी सब्जेक्ट, प्रॉस्पेरस वर्ल्ड। प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं? खाली वास्ट किंगडम पे भी वो छोड़ सकते थे। बट कैन यू इमेजिन, हमारा सक्सेस का पैरामीटर क्या होता है?
अरे यार पैसा है उसके पास, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, बट नो, वो सक्सेसफुल नहीं है अनलेस उसके पास गुड वाइफ है। पैसा बहुत है लेकिन डाइवोर्स हो गया, सॉरी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर हैं उनके, और गाड़ियाँ, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, क्या क्या व्हाट नॉट, बट नॉट गुड वाइफ, और वाइस वर्सा, वट एवर यू वांट कॉल इट। मतलब फैमिली लाइफ इज डिस्टर्ब। तो ऐसी वास्ट किंगडम का, ऐसे पैसे का क्या करोगे जब वाइफ अच्छी नहीं। तो सेकंड पैरामीटर आ गया सक्सेस का, प्लेजर का, सो कॉल्ड प्लेजर। ठीक है, पहला क्या था, पैसा, फिजिकल मनी और घर और वट एवर। देन कम्स रिलेशनशिप, गुड गुड वाइफ। देन व्हाट, ओबीडियंट ब्रदर्स थे युधिष्ठिर महाराज के। अब हमारे ब्रदर्स की जगह आप यहाँ पर चिल्ड्रन लिख सकते हो, इन विच इज एप्लीकेबल इन अवर केस। ठीक है, आपकी वाइफ भी अच्छी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन बच्चा आपकी नहीं सुन रहा। आई नो अगेन अ लॉट ऑफ पीपल, इन वन ऑफ देम वाज इन माय ऑफिस, ही वाज सेइंग कि मैं, मेरा डबल स्टोरी घर है, मैं ऊपर होता हूँ तो मेरा बेटा नीचे आ जाता है, मैं नीचे आता हूँ तो मेरा बेटा ऊपर चला जाता है। एंड ही वाज लाफिंग, ही सेड वी डोंट सी ईच अदर फॉर डेज। दैट इज द रिलेशनशिप विद माय टीनेज सन। सो सब कुछ है, लेकिन बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, बच्चे गलत संगति में चले गए हैं। तो क्या करोगे ऐसे पैसे का, क्या करोगे ऐसी गुड वाइफ का, सॉरी। देन हैप्पी सब्जेक्ट। अब इनके युधिष्ठिर महाराज के क्या थे, हैप्पी सब्जेक्ट्स, मतलब एवरीवन वाज हैप्पी। ही वाज कॉल्ड अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज का दूसरा नाम था अजात शत्रु। मतलब उनके जितने भी, उनकी प्रजा थी, सब्जेक्ट्स मीन्स उनके, उनकी जो प्रजा थी वो सारे खुश थे। क्या हम खुश कर सकते हैं, अपनी फैमिली को नहीं खुश कर सकते, फ्रेंड्स और बाकी, और अपने सोसाइटी, नेबर्स, इनका तो क्या कहना। ठीक है, हमारी फैमिली, हमारा स्पाउस ही नहीं हमसे खुश होता। हमारे बच्चे ही हमसे खुश नहीं होते। तो ही हैज हैप्पी सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स आउटसाइड, आउटसाइड हिज फैमिली, हाँ, एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि खुद की जेबें भर रहे थे वो युधिष्ठिर महाराज, नो, द एंटायर वर्ल्ड, द एंटायर प्लेनेट वाज प्रॉस्पेरस अंडर हिज किंगडम। सो सो नाउ, इससे क्या पता चलता है, इन चीजों से, ये हरे कहाँ गया। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। सो वास्ट किंगडम, गुड वाइफ, ओबीडियंट ब्रदर्स। तो अगर किसी को एसएसआर याद है, एसएसआर में क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट फर्स्ट लेवल ऑफ प्लेजर क्या होता था, फर्स्ट लेवल ऑफ प्लेजर, फिजिकल प्लेजर। जो फिजिकल चीजों से प्लेजर मिलता है, हमारी सेंसेस से, जो हमें टच, खा के, अपने अच्छे अच्छे पदार्थ खा के, उसको बोलते हैं संस्कृत में, शास्त्रों में बोलते हैं उसको पार्थिव रस, पार्थिव रस। और ये हमें, इसका एक यूनिट, इफ आई कॉल इट वन यूनिट, हाँ, तो वन यूनिट ऑफ पार्थिव रस आपको तब मिलता है जब आपकी सारी सेंसेस परफेक्ट हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, विच इज द केस युधिष्ठिर महाराज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ही हैज ऑलमोस्ट एंटायर प्लेनेट एट हिज डिस्पोजल। ठीक है, तब जाके हमें एक पार्थिव रस मिलता है। ठीक है, जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए वैसे ही इम्पॉसिबल है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज लेना और एक परफेक्ट बॉडी लेना, ये दोनों चीजें, परफेक्ट सेंसेस, परफेक्ट बॉडी हो, ये ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट दैट इज द सबसे लोएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, फिजिकल प्लेजर। ठीक है ना, जैसे हमें अच्छा म्यूजिक सुनना है अपनी ईयर्स को वो करने के लिए, उनको सूद करने के लिए, या हमें अच्छा खाना खाना है, और चलो मैं कहता हूँ कि सब कुछ अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं और अनलिमिटेड से आपकी सेंसेस भी परफेक्ट हैं, स्टिल देयर इज अ लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। सुना है इकोनॉमिक्स में, उसमें जो आपने पहला गुलाब जामुन खाया, बहुत बढ़िया लगा, हाँ, फिजिकल प्लेजर, मजा आ गया। दूसरा खाया, तब भी चलो मजा आया। तीसरा खाया, थोड़ा, इट्स ओके। चार, पाँच, सौ, 100वां गुलाब जामुन जब मैं आपको दूंगा, आप बोलोगे नो, आई वोंट ईट।
जो प्लेजर पहले गुलाब जामुन ने दिया 100 में तक आके, वो प्लेजर खत्म हो गया। ठीक है। और बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो जो हाल होगा, और जो डायबिटीज का हाल होगा, वो तो बाद की बात। ठीक है। सो दैट इज वास्ट किंगडम। नाउ गुड वाइफ, and obedient brothers and happy subjects, these all come under what? Under emotional pleasure. इमोशनल प्लेजर मीन जो हमें प्लेजर रिलेशनशिप से मिलता है, वो प्लेजर फिजिकल प्लेजर से ऊपर होता है। उसको बोलते हैं स्वर्गीय रस। वो 1000 टाइम्स मोर, इट इज 1000 टाइम्स मोर देन पार्थिव रस। जो फिजिकल, जो ये इमोशनल प्लेजर है, ये 1000 गुना बेटर है हमारे फिजिकल प्लेजर से, जो हमें फिजिकल चीजें प्लेजर देती हैं। आईफोन, घर, ये वो। ऐसे घर का, ऐसे आईफोन का क्या करोगे जब व्हेन यू हैव नो वन टू शेयर विद। जब तक फेसबुक पे नई गाड़ी के साथ फोटो नहीं डालोगे, तब तक मजा वो नई गाड़ी का आधा है। ठीक है ना? तो इवन अर्जुना सेज इन भगवत गीता, ही वाज सेइंग कि कृष्णा, नो अमाउंट ऑफ रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड कैन ड्राइव अवे द ग्रीफ ऑफ किलिंग माई लविंग रिलेटिव्स। कहता मैं क्या करूंगा पूरा, कहता मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं। इन फर्स्ट चैप्टर ही इज सेइंग दैट, कि मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं, तब भी मैं खुश नहीं रहूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि खुशी बांटने वाला कोई बचेगा ही नहीं मेरे पास। किसके साथ खुशी बांटूंगा मैं? राइट। सो जो फिजिकल प्लेजर्स हैं, दैट कैन सब्सिट्यूट नेवर सब्सिट्यूट द इमोशनल चार्म्स। बोलते हैं ना, लोग प्यार में भूख प्यास सब मिट जाती है, सब उड़ जाती है। तो फिजिकल प्लेजर ना भी रहे, तब भी इमोशनली बंदा एंजॉय कर सकता है। ऑलराइट। सो दिस इज द इमोशनल प्लेजर विच इज 1000 टाइम्स बेटर देन द फिजिकल प्लेजर। देन कम्स द इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जैसे इंटेलेक्चुअल प्लेजर में क्या, इसको शास्त्रों में क्या बोलते हैं? ब्रह्मन रस। जो बोलते हैं कि मैं ज्ञान योगा करके आई कैन गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड गो इनटू द ब्रह्मन, इनटू द स्पिरिचुअल लाइट। इसको बोलते हैं लाइट। लाइट में चला जाऊंगा, वहां पर क्या है? सिर्फ शांति मिलेगी मुझे। वो 1000 टाइम्स बेटर है रिलेशनशिप के रस से। जो हम रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, क्या बोलते थे उसको? स्वर्गीय स्वर्गीय रस से 1000 टाइम्स बेटर है इंटेलेक्चुअल प्लेजर और ब्रह्मन रस। और सबसे टॉप मोस्ट क्या है? स्पिरिचुअल प्लेजर विच इज कॉल्ड भक्ति रस। भक्ति रस, हाँ? उसको बोलते हैं कि ब्रह्मन रस का एक ड्रॉप, सॉरी, ब्रह्मन रस, भक्ति रस का एक ड्रॉप इज इक्वल टू द ओशन ऑफ ब्रह्म ब्रह्मन रस। तो दैट इज भक्ति रस। उसका एक बूंद भी ब्रह्मन रस के ओशन से भी बड़ी। और ब्रह्मन रस स्वर्गीय रस से 1000 गुना बेटर है। स्वर्गीय रस पार्थिव रस से 1000 गुना बेटर है। सो यू कैन इमेजिन कि हम जो पार्थिव रस पे ही फंसे हुए हैं, वो क्या है? इट इज नॉनसेंस। इट इज नॉनसेंस वेयर वी आर स्टक। सो दीज ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक। अब क्या है? बट स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? कि युधिष्ठिर महाराज वॉज हैविंग नो प्लेजर। कहाँ कहाँ थी ये लाइन? युधिष्ठिर महाराज, therefore for him there was no pleasure, that उसको प्रूव करने के लिए मैंने इतना बोला कि उनके लिए पार्थिव रस में, सॉरी, नो प्लेजर। उसके बाद गुड वाइफ, ओबीडियंट ब्रदर्स, इनमें क्या था? ये कौन सा रस था ये? तो नहीं गए? ज्यादा टेक्निकल हो गया। हरे कृष्णा। कोई है? हरे कृष्णा प्रभु, आप क्या हरे क्वेश्चन कृष्णा। पूछे? हरे कृष्ण प्रभु जी। आई मिस द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कौन सा है जो मैंने
करवाया था उसका रिवीजन करवा रहा हूँ कि युधिष्ठिर महाराज को हैज नो प्लेजर, लिखा है ना, देयर फॉर हिम देयर वॉज नो प्लेजर इन वास्ट किंगडम विच इज पार्थिव रस, एंड हाँ। He was गुड able वाइफ। to control his senses, no, Prabhu ji? स्वर्गीय रस, हाँ, पार्थिव रस, स्वर्गीय रस, और आपने तीसरा स्वर्गीय। ये। हम्म। हाँ, तो ये स्वर्गीय, ये मैं पूछ रहा था कि स्वर्गीय रस, गुड वाइफ, हाँ। ओबीडियंट ब्रदर्स एंड हैप्पी सब्जेक्ट्स, स्वर्गीय ये रस, कौन से रस में आता है? स्वर्गीय स्वर्गीय रस रस। में, यस। हाँ। यस। प्रभु हम सुन तो रहे हैं, लेकिन यू नहीं सुनते। नहीं नहीं, ठीक है। तो थोड़ा आज मैं संस्कृत की टर्म्स बोल रहा हूँ ना, मुझे खुद नहीं थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं ऐसे, प्रभु, क्योंकि थोड़ी। हाँ जी। सॉरी प्रभु, जो ये गुड वाइफ, और गुड वाइफ तो स्वर्गीय रस में मान लेते हैं, ब्रदर्स भी गुड उसमें आते हैं। हाँ, रिलेशनशिप ही है ना माता जी। अगर मेरे अच्छे भाई हैं या मेरे अच्छे बच्चे हाँ, हैं तो मेरा हाँ, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो तो वो वो भी पार्थिव से रिलेटेड नहीं होगा? केवल पार्थिव। वो स्वर्गीय रस पार्थिव तो ना वो ना हो ना ना गया ना। ना, जो पति पत्नी का होता है, जैसे आप बता नहीं रहे थे नहीं नहीं अभी। नहीं। पार्थिव पार्थिव रस तो माता जी उसमें होता है जिसमें जड़, जो जिसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे अच्छा। एक बड़ी गाड़ी ले ली, हम्म। उसमें मजा आ रहा है, नया हाँ। आईफोन ले लिया, हम्म। ठीक है, बड़ा बड़ा घर ले लिया, हम्म। जिसमें कोई जान नहीं है, उसको बोलते अच्छा। हैं पार्थिव। ठीक ठीक। पार्थिव का मतलब है जिसमें कोई जान नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें, मटेरियलिस्टिक, जो हमारे जिसमें, जिसके पीछे दुनिया पागल है, जी। ठीक है ना, वो वाला। जैसे वास्ट किंगडम वो आता है हम्म। पार्थिव रस में। अच्छा। वास्ट किंगडम जिसमें कि बहुत बहुत बड़ी सारी किंगडम ही हम्म। मेरी है। हम्म। तो उससे ज्यादा क्या है, इमोशनल, उससे ऊपर है इमोशनल प्लेजर, ओके, विच इज दैट इज स्वर्गीय रस। स्वर्गीय। हाँ, दैट इमोशनल इज स्वर्गीय, प्लेजर, ओके, थैंक यू। जिसमें आपके भाई, आपके रिलेशनशिप, ये उससे बहन हजार भाई गुना सब आ गए, बेटर बच्चे सब आ गए। है। बट आप देख रहे हो युधिष्ठिर महाराज को ना इसमें प्लेजर था क्योंकि ये पार्थिव रस था, ना इसमें प्लेजर है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल, सॉरी इंटेलेक्चुअल बोल रहा हूँ, इमोशनल, इमोशनल प्लेजर है। जी। व्हाई? जी। बिकॉज ही वॉज अ लिबरेटेड सोल, जी। ही वॉज लिबरेटेड आउटसाइड, ही वॉज इन भक्ति रसा। जो जो भक्ति रसा में होता है वो, उसको ना इमोशनल प्लेजर से कोई मजा आने वाला है, रिलेशनशिप से कोई मजा आने वाला है, ना उसको पार्थिव रस से मजा आने वाला है, तो ब्रह्मन तो खैर क्या ही आएगा वहां से तो, ठीक है। So these blessings automatically follow for a pure devotee, even though devotee does not aspire for them. लो जी, वही 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 पॉइंट बोला था ना, कि उसका ब्रह्मन रस का, ब्रह्मन रस इज वन ड्रॉप, सॉरी भक्ति रस इज वन ड्रॉप, उसका वन ड्रॉप में पूरा ओशन आ जाता है। सो भक्ति रस में सब कुछ आ जाता है, ऑल्दो उसको चाहिए, युधिष्ठिर महाराज को चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी आ गया उसके अंदर। जैसे 500 के नोट के अंदर 100 का नोट भी है, 200 का, 50 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 5 का नोट भी है, सारे नोट उसी उसी के अंदर आ गए। भक्ति रस का एक बूंद में सब कुछ आ जाएगा। दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इट इज सेड दैट वन हु इज हंग्री इज नेवर सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग अदर देन फूड। मुझे भूख लगी है और मुझे कोई बोल दे कि ये ले सोने की प्लेट, इसको चबा ले, ये ले मैं तेरे को एक बड़ा सा, मैं तेरे को 500 स्क्वायर मीटर का घर देता हूँ, इसकी ईंटों को चबा ले, खाना नहीं मिलेगा। क्या वो सेटिस्फाई होगा? नो, उसको खाना चाहिए, और खाना हम दे ही नहीं रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं, तू बड़ी गाड़ी ले ले, बड़ा घर ले ले, इससे तू खुश हो जाएगा। बट नहीं, वो नहीं होगा। वही प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज डिससेटिस्फाइड, बिकॉज यहाँ पर छोटा घर है, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, ये सब है ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है, हम इनके पीछे भागे जा रहे हैं कि अच्छा यार, अरे इससे तो मुझे मजा ही नहीं आया, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भागता हूँ, कुछ और भागता हूँ, उसके पीछे भागता हूँ। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। when the living being is hungry for spiritual satisfaction, but हमें पता नहीं है, इल्यूजन में हमें पता नहीं है कि हमें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, because we are in a illusion, we think that he is misrepresented by material hunger। मिसरिप्रेजेंट हो जाते हैं हम मटेरियल, हमें लगता है कि यार अरे ऐसा कैसे, मैंने इतना तो किया, नहीं नहीं, आई थिंक मैंने कुछ कम किया, मैं थोड़ा और करता हूँ तो मजा आएगा। मेरी मेरी मैं अपना ही केस लेता हूँ। मैं जब जॉब लगी, मेरी जॉब बेंगलोर लगी, तो पहले तो खुश था मैं, अरे वाह, प्लेन में जाएंगे, छोटे मतलब 17 ईयर्स 18 ईयर्स ओल्ड, तो वाह, प्लेन में फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ के जाएंगे, कंपनी पे करेगी, ठीक है, बेंगलोर नया शहर देखेंगे, चंडीगढ़ से बाहर निकलेंगे,
तो was very happy. Then after a while, no 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 no, I can't live in South India, I have to go back. मुझे वापस जाना है. Somehow or the other I got a job in Noida. तो नोएडा में आ गया और वहां पर सरमंगला भी वहीं पर थी, उसी की कंपनी में वापस आ गया मैं. तो वहां पर आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नो, थैंक गॉड मैं साउथ इंडिया से बाहर निकला. और मैं देर इज नथिंग रॉन्ग, आई कोई साउथ इंडियन है तो आई एम सॉरी, इट्स देर इज नथिंग रॉन्ग विद साउथ इंडियंस, इट्स जस्ट माई ओन थिंग. तो कि मैं वापस आ गया हूँ नॉर्थ इंडिया में, अपना दिल्ली, अपने अपने पंजाबी लोग और वट एवर उनके बीच में. सो आई वॉज हैप्पी, नोएडा आ गया और सरमंगला भी थी, सो वी वर हैप्पी. देन आफ्टर जस्ट आई स्टेड देयर फॉर, बेंगलोर में रहा कुछ 6-8 महीने और उसके बाद नोएडा अगेन 8 महीने में आई वॉज डन, बस हो गया. मुझे वापस चंडीगढ़ जाना है. एंड देन आई, क्योंकि वहां पे जो घर का आराम और वो सब नहीं मिल रहा था. आफ्टर जस्ट 8 8 मंथ आई वेंट टू चंडीगढ़ इन्फोसिस. फिर वहां पर चंडीगढ़ भी आ गया, अब सारी चीजें फुलफिल हो गई. अब चंडीगढ़ भी आ गया, फिर यहाँ पे सरमंगला से शादी भी हो गई. ठीक है, हैप्पी, हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ. तो फिर अरे नहीं यार, चंडीगढ़ में तो स्टेगनेंट है, नो ग्रोथ, फिर से बाहर जाना. कैन यू इमेजिन हाउ माइंड, कैसे माइंड प्ले करता है, कैसे कैसे ये माया, कैसे इल्यूजन वर्क करती है. बेंगलोर गया, नोएडा गया, वापस चंडीगढ़ आ गया. ठीक है, और चंडीगढ़ से फिर से मुझे बाहर जाना था क्योंकि चंडीगढ़ में ग्रोथ नहीं दिख रही थी. चंडीगढ़ से ऐसा बाहर गया, सीधा जर्मनी. ओह बहुत खुश, वेरी गुड. सारे सारे चेक बॉक्स टिक, सारे बॉक्सेस टिक्ड, इनटू जर्मनी. बहुत मजा आया. ठीक है, अब जर्मनी एंजॉय किया. वहां पर भी ऐसे 1 साल बाद बोर हो गए. कुछ और मटेरियल हंगर खत्म ही नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल कुछ नहीं था, स्पिरिचुअल तो जीरो था. बट लगे जा रहा था कि नहीं, और भागते 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 जर्मनी पहुंच गया. वहां पे भी जाके लगाया, नहीं हो गया बस. वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, बिन देयर डन दैट. हाँ. सो वो भी वहां पर भी कर लिया, वहां पे यूरोप घूम लिया सारा. उसके बाद भी वो मटेरियल हंगर नहीं गई, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. फिर वापस बोला उनको मैंने, ऑफिस वालों को, कि नहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है. ऑस्ट्रेलिया की पीआर भी लगा दी, पीआर आ गई, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया. ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पर भी लग रहा था कि नहीं यार, यहाँ से यूएस चलते. सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग. यहाँ से आके मुझे था कि मुझे यहाँ से E3 वीजा लगता है यहाँ पे, यहाँ से यूएस जाएंगे. बट समहाउ आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड देन वो मेरी जो हंगर थी थोड़ी सी कम हुई है. तो आई, तो वो डवटेल हुई है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. सो आई पुट हाफ माई एनर्जी हियर एंड हाफ हियर. अगर फुल मैं इधर लगा देता तो मैं यहाँ से भी निकल जाता आगे कहीं और. सो सो वी नीड टू थिंक के वी आर हंग्री फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, बट हमें लगता है कि नहीं यार, कुछ तो मिलेगा. ऐसा कैसे? मटेरियल इतनी चीजें हैं, इतना कुछ है दुनिया में, मैं खाली इसी से कैसे सेटिस्फाई हो जाऊं? मैं खाली इंडिया में ही क्यों दम तोड़ दूं? पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा एक्सप्लोर तो करूं मैं, उसके बाद देखूं. एक्सप्लोर करते करते हमारा टाइम आ जाता है, यमराज आ जाते हैं. ओके डन. और वो भी तब है इफ यू आर लकी, इफ यू हैव प्रीवियस डेस्टिनी, तभी आप इतना कुछ कर पाते. नहीं तो खाली मेहनत से नहीं होता. ठीक है, तभी वो बोल रहे हैं कि पीपल दे कैनॉट इवन सी दैट द पीपल हु आर मोस्ट sumptuously materially satisfied are still hungry. इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होगी? सारा दुनिया घूम लिया, उसके बाद भी आई वॉज स्टिल हंग्री. क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो मटेरियल हंगर नहीं है, वो मटेरियल हंगर से खत्म होने वाली नहीं है, इट इज समथिंग स्पिरिचुअल. तो तभी मैं यहाँ पर, दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव बीन इन अ कंट्री और इन अ कंपनी. कंपनी भी नहीं चेंज की यहाँ आके मैंने. तो दैट्स हाउ इट इज. आगे चले, नेक्स्ट. हाँ, तो अभी हाँ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर इन भगवत गीता लॉर्ड सेड दैट इवन द टॉप मोस्ट प्लेनेट, ये जर्मनी, इन्फोसिस, ये सब ऑस्ट्रेलिया तो क्या है, भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि बेटा, मटेरियल वर्ल्ड का सबसे ऊपर वाला लोक क्या है? ब्रह्म लोक.
आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। From the highest planet in the material world, which is Brahmalok, to the lowest, all are the places of misery। लो जी, अब इससे ज्यादा क्या बोलने भगवान, इससे ज्यादा कोई कंफर्मेशन दे सकता है कि सारी प्लेसेस मिजरी की हैं। ब्रह्मा भी बोल रहे हैं कि मिजरी में है ब्रह्मलोक। कैन यू इमेजिन ब्रह्मलोक? किसी को पता है ब्रह्मलोक कहाँ है? क्या ऑर्डर क्या है हमारा? पृथ्वी से ऊपर क्या है? पृथ्वी लोक के ऊपर क्या है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक, हाँ। भूवर 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 लोक है, भूवर लोक के ऊपर हाँ, स्वर्गलोक। हाँ, हाँ। स्वर्गलोक के ऊपर जनलोक, तपलोक। हम्म, जना तपा, मैं खुद ही भूल गया हूँ। फिर आता है ऊपर दो दो लोक और आते हैं, उसके बाद आता है ब्रह्मलोक। आई ओपन द डायग्राम जस्ट टू रिवाइज। एक मिनट, कहाँ गया? आई होप मुझे मिल जाए इजीली। नहीं मिलेगा। मिनट, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु, एक तपलोक भी तो था ना? तपलोक या सत्यलोक सेम है? मुझे भी तपालोक, हाँ। जनलोक, तपालोक, सेम है। अच्छा। महरलोक। महरलोक है एक। हाँ, महरलोक याद आ गया अभी। जन तपा तो मैंने बोला था। उसके बाद हाँ, महरलोक, ठीक है ना? तो ये पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर भूवर है, फिर स्वर्गलोक है, महरलोक भूल गया था। महरलोक, जनलोक, तपलोक, इसके बाद सत्यलोक आता है। क्या नहीं, मैं इतने लोग ऊपर है। लोगों को सिर्फ स्वर्गलोक का पता है, हेवन, स्वर्गवासी हो गए, उनको स्वर्ग मिले, इतनी इतनी है हमारी। और इतने ही लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिजरीज ही हैं। कैन यू इमेजिन? ब्रह्मा जी हैं, ये यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, यहाँ पे चार कुमार रहते हैं तपोलोक में। ये सारे प्रजापति हैं, जितने भी दक्ष और ये सब, ये भृगु मुनि महरलोक में रहते हैं। सारे देवता जो हैं, 33 करोड़ देवी देवता, वो स्वर्ग में रहते हैं। Prabhu, are you sharing your screen? एम आई नॉट? No. ओह सॉरी। लेट मी शेयर इट अगेन। We could see the verse, we couldn't see the picture. ओह सॉरी सॉरी। हाँ, आई विल शेयर माय होल स्क्रीन। ये देखो, दिख रहा है? तो हम हैं पृथ्वी लोक पे, इससे ऊपर है भूवर लोक, जहाँ पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। इससे ऊपर है स्वर्ग लोक, जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। अभी तो दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, yes, Prabhuji. हाँ हाँ हाँ। तो इससे ऊपर है महरलोक। देना प्लीज। हाँ जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। इससे ऊपर है महरलोक, जहाँ पे भृगु मुनि और बाकी प्रजापति रहते हैं। ठीक है, फिर चार कुमारों का लोक, फिर ब्रह्मा जी का लोक, और नीचे राक्षस रहते हैं, बलि महाराज यहाँ रहते हैं। ठीक है, सर्पों का लोक है। बट दे आर ऑल वेरी वेरी ऑप्युलेंट, वे वे अबव। जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, उतना उतना ज्यादा उसमें सटल इंजॉयमेंट है, ये सारे प्लेजर्स जो हमने डिस्कस किए थे। बट हैं सब किसके? ये अंडे के अंदर। जब तक अंडे के अंदर है, सॉरी, देयर इज नो प्लेजर। द प्लेजर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, आफ्टर यू एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। हम तो क्या हैं? हम तो पृथ्वी के भी, ये प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, ये प्लेट्स हैं। फिफ्थ कैंटो में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पृथ्वी है, यहाँ पर देर आर मल्टीपल मल्टीपल पृथ्वीज। सो कृष्णा इज सेइंग ऑल आर द प्लेसेस ऑफ मिजरी, सॉरी, wherein repeated birth and death takes place, but one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth again. So what again? Same चीज प्रभुपाद ने यहाँ लिखी है कि such hunger can be satisfied only when the living being is situated in immortality, which is attained in the spiritual sky far far above Brahmalok.
in association of Lord Mukunda and his devotees. All right, so we'll stop here and see if anyone has any questions, comments. Okay, अभी 15 मिनट हैं. If you want, we can quickly do another one. प्रभु आप SSR में भी पढ़ा वो करते हैं गीता, वहाँ गीता के लिए? हाँ जी माता जी. ओके गुड, मुझे नहीं मालूम था. हरे कृष्णा. जी जी गुड, थैंक यू. ये All right. ओके. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीला प्रभुपाद की आज जय. की हरे जय. कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna.